Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 8 of this playlist, dynamic programming, we are going to see equal sum partition. ओके सो पहले हम उसका रिकर्जन का अप्रोच बनाएंगे, उसके बाद हम उसका डीपी का सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच. सो obviously before starting, let's just see what is Newton School, and I have information for you regarding Newton School. So let's just see that, and afterwards we will begin this video. So as we all know that Newton School is an e-learning platform where they provide you different things. First is pay after placement program, under which you can pay nothing till your placement. Okay, so they will train you for 6 months and they will make you a full stack developer, and after that they will also get you placed in any company for minimum CTC of 5 lakh, and only then you have to pay them. Okay, second thing they have for you is Launchpad, under which they are providing you different courses and everything for free. So, and third most amazing thing they have for you is their master's degree program. Okay, so if you want to know more about these things, just go to newtonschool.co, their website, and check there these 3 programs. Most important thing they have for you is grand coding contest. Okay, so which is going to held in this month only. So if you want to participate, you can just participate in free. Just go to newtonschool.co under grand coding contest and register yourself for free. There are cash prizes for you up to 5 lakh. Okay, so this is a global contest. Anywhere from anywhere can participate in this global coding contest, that is grand coding contest of Newton School. Okay, so there are also job opportunities for obviously top rankers, and there are exciting gifts and cash prizes for you. So you can just come and check more about grand coding contest and participate for free. Last thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel, where there are free content, absolutely free content for you, and for programming language, for dynamic programming, for data structures and algorithms, you can just refer to this YouTube channel. Okay, now let's just begin with today's video. So in today's video we are going to see dynamic programming standard question, that is equal sum partition. ओके और अभी तक हमने देखा क्या था, अभी तक हमने काफी सारे इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चन देख लिए हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. और ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सारे एक साथ क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन में फिर आगे जो नैपसैक का वेरिएशन है उसमें प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम काफी सारे देख रहे हैं. ठीक है, और उसी में एक क्वेश्चन है इक्वल सम पार्टीशन. तो नेम से हो सकता है आप लोगों को सजेशन इंट्यूशन आ गया हो. लेट मी जस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. व्हाट वी हैव इज वी हैव अ एरे ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की एक एरे है. ओके, एंड वी हैव टू चेक ओनली, हमें चेक करना है दैट ईदर वी कैन डिवाइड दिस एरे इनटू 2 सबसेट्स, into 2 subsets of equal sum or not. हमें बस इतना चेक करना है कि हम इस एरे को 2 सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, ट्रू और फॉल्स. फाइन, ये थी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इस तरह की काफी सारे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, और बहुत ज्यादा डिग डीप करके हमने देखा था. ठीक है, उसका रिकर्जन, उसको कैसे अप्रोच करना है, डीपी को कैसे अप्रोच करना है, उसके रिकर्जन को कैसे अप्रोच करना है, डीपी का सॉल्यूशन लिखने का कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको. तो अगर आपने नहीं देखा, जस्ट गो एंड वॉच. नाउ इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं हम. सबसे पहली अप्रोच हमारी क्या होगी कि हमें एक एरे है, उसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई चीज है, ठीक है, और या फिर यू कैन से दैट दिस इज योर सम बैग, और इस बैग में सारे सारे इंटीजर्स हैं 1 2 3 4. ठीक है, और मान लो 5, सारे के सारे इंटीजर्स हैं. इनका सम जो होगा पहले ये देखते हैं. 4 3 7 7 5 12 12 3 15 हुआ. अब तुम्हें इसको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज 7.5. तो मेनली तुम्हें क्या करना है, एक सबसेट चाहिए जिसका सम 7.5 हो, दूसरा सबसेट चाहिए जिसका 7.5 हो. क्या तुम इन सारे इंटीजर्स को लेके ये डेसिमल सम बना सकते हो? जस्ट चेक इट.
ये तो कॉमन सेंस सी बात है कि तुम इन इंटीजर्स को लेके डेसिमल सम नहीं बना सकते, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या आई हमारे क्वेश्चन में या फिर हमारे सॉल्यूशन अप्रोच में कि जो हमारा टोटल सम है एरे का, टोटल सम ऑफ एरे, सपोज दिस इज माय एरे, ठीक है, ये मेरी एक एरे है और इसका टोटल सम एस है। तो ये जो टोटल सम है ये डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। डिवाइड बाई 2 अगर होगा तो सिंपली होगा क्या, जो हमारे S1 और S2 का सम है वो भी इंटीजर आएगा, ओके। और हम खाली इंटीजर सम ही बना सकते हैं S1 और S2 सबसेट का, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमारा सम है टोटल सम, टी सम यू कैन से, मॉडलो 2 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वी कैन डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन कि हम इस कंप्लीट एरे को 2 सबसेट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, फॉल्स, ठीक है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहली कंडीशन हमने चेक कर ली। नाउ अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमने पहली कंडीशन चेक कर ली एंड नाउ वी नो कि हम 2 सबसेट्स में, ये मेरी एरे है और मैं इस एरे A1 को 2 सबसेट्स में S1 और S2 में डिवाइड कर सकता हूं, ओके। अब मुझे इसका टोटल सम पता है, दैट इज टी सम। टी सम मान लो 20 है, ठीक है। तो S1 का सम कितना हो जाएगा 10, S2 का सम कितना हो जाएगा 10। नाउ वी सिंपली नो कि मैं एक सबसेट मुझे चेक करना है, ठीक है। मेरा टास्क अब रिड्यूस किस में हो गया, पहले मैं क्या चेक कर रहा था कि मैं 2 सबसेट्स में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अब मेरा टास्क रिड्यूस हो गया कि मुझे 2 सबसेट्स ऑफ सम 10 फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर इस टास्क को और थोड़ा सा रिड्यूस करो, तुम थोड़ा सा और जनरलाइज करो, तो यू कैन से कि मुझे खाली सिंपली एरे में एक सबसेट फाइंड करना है। व्हाई? क्योंकि अगर मैंने S1 फाइंड कर लिया, ठीक है, मैंने S1 कोई फाइंड किया जिसका सम 10 है, मैंने इस एरे से कोई भी एक सबसेट S1 फाइंड कर लिया जिसका सम 10 है, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी S2 में चले जाएंगे और उनका भी सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मेरे जो क्वेश्चन है और जनरलाइज हो गया, और जनरलाइज होने के बाद मेरा क्वेश्चन बचा क्या कि ये एक गिवन एरे A1 है मेरे पास, ठीक है, और मुझे जस्ट इसमें ये फाइंड करना है कि इफ आई हैव अ सबसेट हुज सम इज इक्वल्स टू S1 और मुझे S1 ऑलरेडी पता है दैट इज 10, ठीक है। तो आई सिंपली हैव टू चेक दैट इफ इन एन एरे देयर इज अ सबसेट जिसका सम S1 है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर तुम लोगों को पता ना हो तो, कि सबसेट सम प्रॉब्लम में आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सबसेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगेन लेकिन हम यहाँ पे एक बार उसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो अगर सबसेट सम प्रॉब्लम तुम्हें देखनी है तो अब सिंपली रिकर्जन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सपोज रिकर्जन फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूं इसका तो कैसे लिखेंगे, रिकरेंस फंक्शन मैंने लिखा, उसमें मेरे पास क्या क्या इनपुट आएगा, एक एरे आ जाएगी मेरे पास और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी एरे में है, और जो सम मैं बना रहा हूं यहाँ पे, करेंट सम मैं जो बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, दैट इज 10, यू कैन से, रेफरेंस के लिए 10 ले लो, फाइन, ओके। अब मुझे सिंपली हर स्टेप में करेंट एलिमेंट आई के लिए 2 चॉइस रहेंगी, ठीक है, दैट इफ आई कैन इंक्लूड दिस एलिमेंट, इंक्लूड कर सकता हूं या एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, और इंक्लूड के जस्ट बाद मुझे 2 चॉइसेस रहेंगी, इंक्लूड किया दैट इज आई हैव रियली इंक्लूडेड दिस एलिमेंट इन माय सम, और यू कैन से आई हैव रियली इंक्लूडेड दिस एलिमेंट इन सबसेट 1 और नॉट, ठीक है। और फाइनल में मेरा आंसर रहेगा क्या इन दोनों केसेस का, और वाई सिंपली ये चीज भी मैं बता चुका हूं कई बार इस प्लेलिस्ट में, अगेन बताता हूं। सपोज मैंने करंट एलिमेंट ए ऑफ आई को अपने सबसेट 1 में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, तो ये केस है। अब मुझे कोई एक सबसेट 1 मिला होगा, ठीक है, फाइन। दूसरा केस क्या है कि मैंने इंक्लूड कर लिया S1 में, ठीक है, तो ये केस मिला होगा। मुझे इन दोनों केस का और चाहिए, क्योंकि दोनों केसेस में पॉसिबल है कि S1 जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, A1 को इंक्लूड किया या फिर A1 को इंक्लूड नहीं किया, A1 को इंक्लूड नहीं किया, दोनों केस में पॉसिबल है कि इसका सम जो है वो कितना हो जाए, मेरा डिजायर्ड सम, दैट इज 10, ओके। सो दैट्स व्हाई इन दोनों में से अगर किसी भी केस में
मेरा जो डिजायर्ड सम है वो अचीव हो रहा है, तो मेरा आंसर टोटल कितना हो जाएगा, यस ट्रू। दैट्स व्हाई मैं इसका और ले रहा हूं, ठीक है, बिटवाइज और। तो आई गेस इसका रिकर्जन सॉल्यूशन बहुत हद तक समझ में आ गया है। अब रिकर्जन में ये मुझे केस डायग्राम मेरे पास है, मुझे इसके लिए बस आंसर लिखना है, तो वो चीज मैं आपको कोडिंग पार्ट में दिखा देता हूं, ठीक है। बेस केसेस और इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस केसेस इसके सिंपली क्या हो जाएंगे, अगर टोटल सम जो डिजायर्ड सम मैं बना रहा हूं, मैं बेस केसेस कैसे लेता था, मैं सबसे पहले ये बता देता हूं। बेस केसेस जो भी इनपुट हैं, हम उसमें इनपुट में क्या करते थे, स्मॉलेस्ट वैल्यू डाल के देखते थे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर सम क्या हो जाएगी, 0। तो अगर सम इज इक्वल्स टू 0 है तो तुम्हारा आंसर ऑलवेज यस हो जाएगा। वाई, अगर सम इज इक्वल्स टू 0 है तो तुम्हारा आंसर ऑलवेज यस क्यों हो जाएगा, और सिंपल सी चीज है कि तुम्हें उस सबसेट S1 में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रखने और तुम सम 0 हमेशा अचीव कर सकते हो, ओके। और दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है तो तुम कोई भी सम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, अदर देन 0 ऑब्वियसली। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो तुम खाली सम 0 अचीव कर सकते हो और कोई सम अचीव नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इफ n इज इक्वल्स टू 0 है तो आंसर फॉल्स, और अगर सम इज इक्वल्स टू 0 है तो आंसर यस, ठीक है। नाउ अब इसको लेके हम रिकर्जन का कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो पॉज कर दो वीडियो को और कोड लिखने की कोशिश करो। बहुत इजी सी चीज है। जो भी मैंने केस डायग्राम अभी बनाया था, इंक्लूड, एक्सक्लूड और फिर इंक्लूड के भी मैंने 2 केसेस बनाए थे, मुझे बस वही लिखना है, ठीक है। तो टोटल 4 लाइनें लिखनी है मुझे अपने रिकर्जन फंक्शन में। पहला बेस केस, इफ सम इज इक्वल्स टू 0 है, मैंने सिंपली रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। इनपुट में मैंने 3 चीजें ही ली है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सम और एरे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है, ठीक है, तो तुम सिंपली क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। अब यहां पे मुझे एक कंडीशन और चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट इज सम 0 है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं अगर सम 0 होगा तो रिटर्न 0 कर चुका हूं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बेस केस लिख दिया। अब करंट एलिमेंट का चेक करो। अगर जो करंट एलिमेंट है दैट इज एरे ऑफ n-1 वो तुम्हारे डिजायर्ड सम से बड़ा है, इट मींस तुम उसको अपने सबसेट में इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो तुम्हें सिंपली क्या देना है, उस एलिमेंट को कंसीडर कर चुके हो, सिंपली रिटर्न कर दो रिकर्जन फंक्शन एरे 1 से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि तुम करंट एलिमेंट को कंसीडर कर चुके। और सम क्यों तुमने खुद ब खुद सम क्यों रिटर्न किया, क्योंकि तुम्हारा जो डिजायर्ड सम है अभी भी वही है, तुमने करंट एलिमेंट को सबसेट में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। और फिर एल्स में तुम्हें सिंपली क्या रिटर्न करना है, यहां पे तुम एल्स लिख लो अगर तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। एल्स में तुम्हें सिंपली रिटर्न करना है कि तुम उस एलिमेंट को 2 केसेस, ठीक है, तुम करंट एलिमेंट को ये वाले 2 केसेस इंक्लूड एग्जैक्टली कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये 2 केसेस। तो ये दोनों केसेस लिखे हैं। अगर तुमने इंक्लूड एग्जैक्टली नहीं किया तो ये सेम हो जाएगा ऊपर वाले जैसे। अगर इंक्लूड एग्जैक्टली कर लिया तो करंट एलिमेंट कंसीडर्ड हो गया n-1 और तुम्हारा डिजायर्ड सम अब किससे डिक्रीज हो जाएगा, एरे ऑफ n-1 से। अब डिजायर्ड सम तुम्हारा कम हो गया, ठीक है। और ये एट द एंड ये रिकर्जन फंक्शन तुम्हें क्या रिटर्न कर देगा कि तुम्हारा जो सबसेट है उसका सम डिजायर्ड सम के इक्वल हो सकता है, कोई ऐसा सबसेट है या नहीं है, ठीक है। अब रिकर्जन में क्या प्रॉब्लम होती है कि रिकर्जन का जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमें 2 रेज n में मिलता है, दैट इज n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीपी भी हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाली, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। डीपी में मैंने क्या किया, डीपी की करंट स्टेट मैंने ली, ठीक है, सम बाई 2 + 1। यहां पे सम क्या है तुम्हारा, ये डिजायर्ड सम नहीं है, ठीक है, दैट इज मैं सम बाई 2 कर रहा हूं यहां पे, तो उस पे कंफ्यूज मत होना। यहां पे जो ये सम है ये टोटल सम ऑफ एरे है, ठीक है। तो अब हमें डिजायर्ड सम क्या बनाना है, सम बाई 2 + 1 फॉर इंडेक्सिंग, ठीक है, क्योंकि जो एरे की इंडेक्सिंग वो 0 से होती है। तो मैंने एक डीपी एरे बनाई जहां पे मैं पहली जो रो लूंगा सम बाई 2 + 1 की और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n+1, ठीक है। अब मेरी सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना होता है, डीपी ऑफ ij डिफाइन किसको करेगा, ठीक है। तो डीपी ऑफ ij सिंपली डिफाइन करेगा कि आई सम इज पॉसिबल और नॉट बाय यूजिंग j एलिमेंट्स, ठीक है। डीपी ऑफ ij सिंपली ये डिफाइन करेगा, अगर पॉसिबल है तो डीपी ऑफ ij क्या हो जाएगा, ट्रू,
एल्स में फॉल्स। ठीक है, तो सिंपली ये। अब बेस केसेस, जो भी रिकर्जन के बेस केसेस होते हैं या फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे तुम यहां पे करोगे। ठीक है, ये दोनों चीजें इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे हो रही हैं। तो सिंपली अगेन मुझे जैसे रिकर्जन में किया वैसे ही तुम्हें यहां पे करना है कि अगर तुम्हारा जो सम है वही तुम्हारा 0 है तो सारे के सारे तुम कितने भी एलिमेंट्स ले लो तुम सम हमेशा 0 अचीव कर सकते हो। दैट्स वाई डीपी नॉट और आई को तुमने ट्रू कर दिया। ठीक है, और अगर तुम्हारा मान लो क्या कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है, n इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो तुम कितने भी कोई भी सम हो तुम्हारा, सम इज इक्वल्स टू आई कोई भी हो अदर देन 0, इसलिए मैंने जो लूप है वो 1 से शुरू किया। ठीक है, तुम कोई भी सम अचीव नहीं कर सकते। दैट्स वाई डीपी ऑफ I0 इज फॉल्स ऑलवेज। ओके फाइन, यहां तक तुम्हें समझ में आ गई। नाउ तुम्हें सिंपली 2 लूप्स लगाने हैं और सारे के सारे जितने भी पॉसिबल सम्स हैं उसको तुमने I में डाला। ठीक है, और हर पॉसिबल सम के लिए तुम अब J चेक करोगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हर वैल्यू अपडेट करते जाओगे। तो ये वाली लाइन देखो, dp ऑफ ij इज इक्वल्स टू dp ऑफ i j माइनस 1। तुमने सिंपली dp ऑफ ij को पहले क्या बना दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है कि मान लो तुम अगर j माइनस 1 एलिमेंट का यूज करके आई सम बना ले रहे थे तो j एलिमेंट का यूज करके भी आई सम ऑब्वियसली बना लोगे। दैट्स वाई। ठीक है, तो ये चीज हमने इसलिए अपडेट की कि अगर हम j माइनस 1 एलिमेंट्स का यूज करके आई सम अचीवेबल था तो j एलिमेंट्स का यूज करके भी आई सम अचीवेबल होगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन है। नाउ हम करंट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि अगर करंट एलिमेंट को हम अपने सबसेट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड कर सकते हैं तो तुम्हें सिंपली क्या लेना है, और ऑफ बोथ द केसेस, जैसे तुमने रिकर्जन में लिया था और ऑफ बोथ द केसेस। ये देखो जैसे रिकर्जन में लिया था। ठीक है, तो वैसे ही करना है तुम्हें। डीपी ऑफ आईजे विल बी डीपी ऑफ आईजे का और करंट सम तुम्हारा अगर तुमने इंक्लूड किया एलिमेंट को तो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, आई माइनस एरे ऑफ जे माइनस 1। डिजायर्ड सम तुम्हारा कितना हो जाएगा, आई माइनस एरे ऑफ जे माइनस 1। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि डीपी ऑफ आई जे तुम चेक कर रहे हो। ठीक है फाइन, तुम कह रहे हो कि इस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं मैं, करंट एलिमेंट को। ठीक है, तो अगर इंक्लूड कर रहे हो तो तुम सिंपली ये चेक कर रहे हो कि जो तुम्हारा प्रीवियस सम था, प्रीवियस सम क्या होगा अगर तुमने करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया, एरे ऑफ जे माइनस 1 को तुमने इंक्लूड किया तो इसके पहले करंट सम तो तुम्हारा कितना है, आई है। प्रीवियस सम कितना होगा, आई माइनस एरे ऑफ जे माइनस 1। ठीक है, और प्रीवियस एलिमेंट्स कितने थे, सिंपली जे माइनस 1। तो अगर जे माइनस 1 एलिमेंट्स को यूज करके तुमने आई माइनस एरे ऑफ जे माइनस 1 सम ऑलरेडी अचीव कर लिया है तो तुम करंट एलिमेंट को उसमें ऐड कर दोगे और जे एलिमेंट्स को यूज करके तुम सिंपली आई सम भी अचीव कर लोगे। तो ये काइंड ऑफ ऐसी चीज है कि अगर तुम आई माइनस एरे ऑफ जे माइनस 1 ऑलरेडी अचीव कर सकते हो तो तुम इसमें प्लस कर दो एरे ऑफ जे माइनस 1 और तुम आई सम अचीव कर लोगे, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आई सम भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली ये ऐसा तुम समझ सकते हो। एंड एल्स में हमें रिटर्न क्या करना है, सिंपली फाइनल आंसर डीपी ऑफ सम बाई 2 और n एलिमेंट्स का यूज करके हमें सिंपली ये रिटर्न करना है कि हम सम बाई 2 बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और अगर हम सम बाई 2 बना पा रहे हैं दिस मीन्स कि हम सबसेट 2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसका सम बाई 2 होगा। ठीक है, सो आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगेन जस्ट गो टू newtonschool.co and register yourself to grand coding contest of Newton School, जहां पे कैश प्राइजेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। ठीक है, जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ and again subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, if you haven't done yet. Thank you guys for watching this video.